हाँ, एक बार पिक्चर देखिए, आपको स्क्रीन शो हो रही है? ओके देन। So good morning to everyone. Today we are doing the partnership law, which is a part of a law of contract in a UGC NET lecture series. Partnership, in a partnership we are doing the two three things. First of all, I will clear with that. Ki first we go with the definition and nature of partnership. Then with the relations of between the partners, relation between partners, and relation between partners and third party. After that, incoming and outgoing of partners, then dissolution of firm, and in last we are doing the registration of firm. These are the aspects which we have to be covered regarding the partnership act. What you need to do, you have to be buy a bare act and go with the every section of a partnership act after this class. First you will be take the class, then read the PDF, and then just make a readout to the whole bare act. Clear? If I discuss about the partnership, so partnership can be defined as an agreement. Partnership is an agreement. Agreement, what kind of agreement and contract? To share a profit. Share profit from a business. एक बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा उससे हम शेयर करेंगे, विच कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम. Partnership is an agreement between two or more than two person to share a profit from a business which is carried on by either be all of them or any of them. एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें हम ये कॉन्ट्रैक्ट के मेक करें कि हम सब मिलके प्रॉफिट शेयर करेंगे एक बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है, जो या तो वो बिजनेस हम सब मिलके चला रहे हैं या फिर हम में से कोई एक चला रहा है. इट्स नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी पार्टनर हैज डन अ एक्टिव पार्टनर इन अ फर्म. It's not be necessary. It's just a group of persons. They start a business. Anyone can be run of them, and whoever be run of them, it's quite okay with that. And the sharing of profit is occur between all of them equally, either be equally or as be on the demanding and the conditions of a agreement. जैसा एग्रीमेंट होगा उस हिसाब से वो प्रॉफिट अपना शेयर करेंगे. क्लियर? Thing is that the definition part of a partnership act only just discuss about the share of profit, not about the loss. They just say that we are doing the share of profit. We are making that point. It doesn't mean that they are not sharing the loss. They are also sharing the loss, but they only manifest the share of profit because whenever we make a agreement, whenever we make a business, we only think about the profit. भाई लॉस करने के लिए तो कोई बिजनेस नहीं खोलता, हम प्रॉफिट के लिए खोलते हैं. और कोर्ट भी और लॉ भी आर क्वाइट इन अ पॉजिटिव माइंडसेट, सेट दैट वी जस्ट शेयर अ प्रॉफिट. एक पॉजिटिव अप्रोच कोर्ट ने रखी और लॉ ने रखी, और लॉ ने एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये कहा कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे. अपार्ट फ्रॉम द सेक्शन 12 एंड 13 आर आल्सो डिस्कस अबाउट द लॉस विच आर द डिफरेंट थिंग. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन अ पार्टनरशिप. द नेम ऑफ द फर्म, group of the persons are called the partners, and the name under which that persons are work, that is called the firm. ठीक है, इन सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे. एंड द नेम अंडर दे विच वर्क दे आर कॉल्ड द फर्म नेम. जिस नेम के अंडर में वो वर्क करेंगे उसे हम फर्म का नाम बोलेंगे. क्लियर? अब एक दो बात इन्होंने सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में दो बातें इन्होंने कही. First of all, they said that the merely says the status. It doesn't mean you are the partner. Merely with the status. Status with that thing, you just kept some position, some type of designation with yourself. It doesn't mean you are the partner. एक पार्टनरशिप फर्म में अगर आप कोई मैनेजर हैं या फिर कोई डायरेक्टर की पोस्ट मिली हुई है, कोई स्पेशल डिपार्टमेंट आपको मिला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें फर्म के पार्टनर हैं. यू मे बी द एम्प्लॉय बट कैन नॉट बी अ पार्टनर. Even if you are a member of a family, joint Hindu family, and your karta all is the partner of some firm, it doesn't mean that because only you are the son of karta, because your father is a member of a partnership firm, you also become the member. It is not possible, not at all.
एक अगर कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है, उस फैमिली में अगर कोई बेबी बॉर्न होता है वो ऑटोमेटिकली उसका पार्टनर बन जाएगा, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। क्लियर? So by mere declaring of a status, no person can be claim the membership of a partner, for membership of firm. Clear? नहीं, फर्म का मेंबर कैसे बना, मतलब आप बताइए। अगर मैं किसी फर्म में जॉब करता हूँ या फिर मेरे फादर की वो फर्म है, तो क्या मैं उसमें मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाऊंगा? हाँ, तो वो ऑलरेडी उसके पार्टनरशिप में पार्टनर बन गया उसका। मतलब बॉर्न होने के बाद और मतलब फादर की डेथ के बाद, व्हाट यू वांट टू से, आफ्टर द डेथ ऑफ फादर? नहीं सर, आप क्या कह रहे हैं, आप एक बार फिर से बताइए। सबका जैसे है फैमिली में कोई भी करता है, बिजनेस कर रहा है, तो जो भी बच्चा होगा, बोर्न होगा, वो ऑलरेडी उसका पार्टनर हो गया ना सर। नहीं नहीं नहीं, देखो, अगर कोई एक फैमिली बिजनेस चल रहा है, सपोज देयर इज अ फैमिली बिजनेस, योर फादर एंड योर अंकल, फादर्स ब्रदर आर जॉइंट कलेक्टिवली डू अ बिजनेस, दे मेक अ फर्म एंड दे आर द पार्टनर ऑफ दैट फर्म। It doesn't mean the child born by the father and the uncle they automatically become the partner of that firm. It does not mean. जब तक वो उनको लीगली एंटर नहीं कराते तब तक वो पार्टनर नहीं बन सकते। गेट इट? चाहे आपका फैमिली ही बिजनेस क्यों ना है, जब तक आप उसमें रजिस्टर्ड नहीं होते, आप एज अ मेंबर वर्क नहीं करते, यू कैन नॉट बी डीम्ड एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म। क्लियर? One thing is that about the status. Second thing is that mere sharing of profit, mere sharing of profit doesn't give the right of partnership. अगर सिर्फ आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं विद द फर्म, इट डजेंट मीन यू आर द पार्टनर ऑफ दैट फर्म। आपने सपोज यू आर अ लैंडलॉर्ड एंड यू गिव योर प्लेस टू द पार्टनर ए फर्म, आपने एक फर्म को अपनी प्रॉपर्टी लैंड पे दी और आपने ये कहा, रेंट पे दे दी, और आपने ये कहा कि जो भी आप कमाएंगे उसका 5% मुझे दे देना, वट एवर द टर्न ओवर ऑफ योर फर्म, काइंडली गिव मी द 5% ऑफ इट एज अ रेंट। अब क्योंकि उसका प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टीशन है, उसका हिस्सा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फर्म में पार्टनर है। इवन इफ आई टेक अ लोन फ्रॉम सम कंपनी एंड आई गिव द सम ऑफ द इक्विटी टू देम, और मैंने ये कह दिया कि भाई इतने पैसे मैं इतने परसेंटेज आपको दे दिया करूंगा इफ यू इन्वेस्ट इन माई, इट डजंट मीन दे आर द पार्टनर। ठीक है? अनटिल अनलेस द फर्म इंटेंशनली एंटर दैट गाय एज अ पार्टनर, जब तक जो फर्म के अदर मेंबर्स हैं मेजोरिटी बेस पे डिसीजन लेके उसे पार्टनर की तरह एंटर नहीं करते, तब तक मेयर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इट डजंट मीन मेक द सेंस टू मेक योर सेल्फ अ पार्टनर इन अ फर्म। Clear? That is with the partnership. Partnership is clear with that partnership in the agreement between the two or more than 2% to share a profit from a business carried on by all or any of them. The nature is very clear. Partnership itself a complete organization, an entity in itself. It's an entity and a legal entity. And one thing more, partnership are of a two type: particular partnership or will partnership. Partnership at will. In a case of a particular partnership, you make a firm, you make a partnership for a particular business, for a particular time period, for a particular object, for a particular any subject matter की ये काम खत्म होने के बाद हम पार्टनरशिप डिसॉल्व करते हैं। जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी वो एक रूल के तहत आएगी, अपना काम करेगी और उसके बाद अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है? अगर उसे आपको कंटिन्यू करना है तो एक अलग से मेमोरेंडम निकालना पड़ेगा, अलग से ऑब्जेक्ट निकालने पड़ेंगे, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आई है। बट द पार्टनरशिप एट विल इज जस्ट कम विद देयर द विल सेल्फ, कि अपनी मर्जी से लोग इकट्ठा हुए, बिजनेस करना स्टार्ट करा, कोई उन्होंने पर्टिकुलरिटी नहीं रखी, उन्होंने बस ये कहा कि हम बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट जनरेट करेंगे। क्या बिजनेस होगा, कैसा होगा, क्या मैटर होगा, कितने टाइम के लिए करेंगे, ये सब बात उन्होंने नहीं करी। ये वाली जो पार्टनरशिप होगी ये बाय एग्रीमेंट और बाय नोटिस के तहत बाद में डिसॉल्व हो सकती है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी आफ्टर द फुलफिल ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है? दीज थिंग अबाउट द पार्टनरशिप। यहां तक कोई डाउट? चलो, नाउ वी कम विद द रिलेशनशिप
बिटवीन पार्टनर्स एंड पार्टनर, पार्टनर के बीच में क्या क्या रिलेशन होगा। सेक्शन 9 to 11 आर डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स एंड पार्टनर। बोथ पार्टनर्स आर collectively responsible for their work. They are have to be work together. What they have to do? Partner in a case of a emergency type situation, partner have to be indemnify the firm. अगर कोई दिक्कत आती है फर्म के ऊपर तो ये पार्टनर्स की ड्यूटी है कि फर्म को इंडेमनीफाई करे, फर्म को सिक्योर्ड रखे। इन अ सेम सेंस फर्म इज आल्सो हैव अ ड्यूटी इन अ emergency situations on a partners have to be indemnify them. पार्टनर्स भी फर्म का ध्यान रखेंगे और फर्म भी पार्टनर्स का ध्यान रखेगी। एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज should be made by the agreement either by express or implied। ये बात थोड़ी सी समझनी है। सेक्शन 11 कहता है इस बारे में, ये कहता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टनर आर शुड बी फिक्स्ड बाय द एग्रीमेंट देमसेल्फ। एग्रीमेंट बताएगा कि भाई ये राइट है, ये ड्यूटी है, इसका इतना शेयर है, इसका इतना शेयर है, ऐसे प्रॉफिट शेयरिंग होगी, ऐसे डिसीजंस लेंगे, ये उसकी ये पोस्ट होगी, ये बंदा ये वर्क देखेगा, वो एग्रीमेंट बताएगा। अगर एग्रीमेंट नहीं बताता, अगर एक्सप्रेसली एग्रीमेंट बताया है तो वेल एंड गुड है। अगर एग्रीमेंट नहीं बताता इन केस, सो व्हाट द थिंग हैज बीन लेफ्ट, दैट इज द इम्प्लाइड ड्यूटी की जो वेरी फर्स्ट इनिशियो, जो विद इन 1 month, विद इन 6 month, विद इन 1 year जो आपने एक मार्क सेट करा कि ये बंदा ये काम करता है, इसे हम इतना प्रॉफिट शेयर करते हैं, वो आगे तक कंटिन्यू रहेगा। फिर वो इम्प्लाइड नेचर से फिर एग्रीमेंट तय होगा। अगर आपने कुछ ऐसा स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं बनाया, देन द इम्प्लाइड नेचर विल बी डिसाइड हाउ दैट थिंग विल बी अकर इन फ्यूचर। क्लियर? ये थी पार्टनर के बीच में बात। अगर मैं बात करूं पार्टनर और थर्ड पार्टी, जिससे पार्टनरशिप डील करेगी, या फिर मैं क्लाइंट वर्ड यूज करता हूँ यहाँ पे, क्लाइंट इज क्वाइट अप्रोप्रिएट, जो फर्म का क्लाइंट है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। देखो जैसे अभी तक हमने जाना, एक बहुत अच्छी चीज है, सेक्शन 18 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट सेज दैट द एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ फर्म। इफ यू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ एजेंसी एंड द एजेंट इज द पर्सन हु रिप्रेजेंट द अनदर पर्सन इन अ फ्रंट ऑफ अ थर्ड पर्सन। जो तीसरे बंदे के सामने अपने पिछले वाले प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करता है, वो एजेंट है। अब इन्होंने कह दिया कि पार्टनरशिप फर्म का हर व्यक्ति एजेंट है अपनी फर्म का। हर जगह जब भी वो क्लाइंट से डीलिंग कर रहा है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द फर्म फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, एंड फर्म इज कलेक्टिवली, ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट एंड सेवरेबली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवरी एक्ट ऑफ द एवरी पार्टनर। अब हम ये नहीं कह सकते जी उस पार्टनर ने कुछ काम करा, हमसे तो पूछा नहीं, या फिर ऐसे कर लिया। अगर वो ड्यूरिंग द वर्क कोई भी काम करता है, ऑल आर जॉइंटली एंड सेवरेबली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम। क्लियर विद दैट? ऑल आर, नो वन कैन बी डिनाई कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, हमारी कंसर्न नहीं थी। अगर ड्यूरिंग द कोर्स, एक चीज और ध्यान रखना, ड्यूरिंग द वर्किंग कोर्स जो नेचर उस फर्म का है, उसी नेचर में अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई ऑफेंस कर देता है तो वो खुद लाइबल होगा। लेकिन अगर वो क्लाइंट के साथ फ्रॉड कर रहा है, ये समझ के क्लाइंट ये समझ रहा है कि ये पार्टनरशिप फर्म का मेंबर है, दैट्स व्हाई द क्लाइंट एंटरटेन हिम एंड दैट गाय मेक अ फ्रॉड विद द क्लाइंट, तो भैया फर्म लाइबल होगी उसमें। क्लियर? ये हुआ फर्म का और एजेंट्स का अपने आप में एक रिलेशनशिप। फर्म विल बी लाइबल फॉर एवरी एक्ट ऑफ द एवरी पार्टनर। फर्म कैन नॉट बी डिनाइड, फर्म गेट द कंप्लीट लाइबिलिटी विद देमसेल्फ। क्लियर टिल नाउ? नाउ वी कम विद द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग ऑफ पार्टनर। अब तक हमने पार्टनरशिप बनाई, उसका नेचर देखा, एग्रीमेंट देखा, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड रिलेशंस हैज बीन डन। अब हम ये देखते हैं कि फर्म बन गई, अब बाद में कोई पार्टनर ऐड करना है या फिर कोई पार्टनर निकालना है तो कैसे होगा। तो एक तो इनकमिंग है और एक आउटगोइंग है। इनकमिंग इज सिंपली सेज दैट any partner can be enter in a firm by get a majority based decision। जो भी मेजोरिटी पे डिसीजन लिया जाएगा, उस मेजोरिटी बेस्ड डिसीजन पे आप किसी को भी इनकमिंग कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। स्पेशल थिंग इन द सेक्शन 30 इज डील विद द माइनर पार्टनर। माइनर आल्सो कैन बी द पार्टनर ऑफ अ फर्म। क्लियर विद दैट थिंग कि हम माइनर को भी फर्म में पार्टनर बना सकते हैं। सेक्शन 30 जो है
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 का एक्सेप्शन है, सेक्शन 10, 11, 12 का, विच दिस सेज दैट द पर्सन शुड बी अ साउंड एंड मेजर। उसका एक्सेप्शन यहाँ पे क्रिएट होता है कि माइनर आल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ अ एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ केस ऑफ अ पार्टनरशिप। क्लियर? दैट इज द इनकमिंग ऑफ द। आउटगोइंग की अगर बात करूं तो 2-3 तरीके हैं, या तो नोटिस दे के हम किसी को निकाल सकते हैं, या फिर रिटायरमेंट का प्रोविजन हो सकता है कि भाई द एज हैज बी डन, यू आर रिटायर्ड फ्रॉम दैट पोस्ट, अदरवाइज डेथ तो है ही। ठीक है। एक लास्ट सिनेरियो होता है कंसेंट विद ऑल पार्टनर। कंसेंट और नोटिस एक साथ चलेगा। नोटिस और कंसेंट का जो प्रोविजन, दैट क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक अ आउटर ए पार्टनर। एक बड़ा मुश्किल कदम होता है कि पार्टनर्स को ही आपस में निकालना। अगर दैट मेक थिंग इजीली, तो इट बिकम हार्ड टू सर्वाइव ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म। अगर ये राइट हम ऐसे ही बांट दें तो फिर तो कोई फर्म सर्वाइव ही नहीं करेगी, क्योंकि देखो कॉन्ट्राडिक्शन तो होंगे। व्हेनेवर द 2-3 पर्सन्स कम टुगेदर, ऑल हैव द डिफरेंट थॉट प्रोसेस, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो होंगे। पर ये जरूरी है कि हम एडजस्टमेंट करके चलें। अगर इजीली लोगों को निकालने स्टार्ट हो जाएगा तो पॉलिटिक्स हो जाएगी, फर्म हो जाएगी डिसॉल्व। ठीक है। दैट इज द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग ऑफ अ पार्टनर्स। एनी डाउट हियर? आउटगोइंग, incoming is simply like whenever you want to be entered another person in a firm, you just have to be take the majority based decision। majority लेंगे सारे partners की, if they all are ready, तो हम किसी भी बंदे को एंटर करा सकते हैं। अच्छा, एंटर कराने के इनके अपने रूल्स होंगे। हो सकता है कि वो कुछ पैसे लें, पहले कैपिटल मांगे, इन्वेस्टमेंट मांगे, तब वो एंटर कराएं, वो उनके अपने रूल्स है। लेकिन एंटर कराने से पहले आपको डिसीजन सबका लेना पड़ेगा, सबके मेजॉरिटी बेस्ड डिसीजन होगा। ठीक है। सेक्शन 30 एक छोटा सा क्लॉज ये है कि हम माइनर पर्सन को भी पार्टनर बना सकते हैं। माइनर आल्सो कैन बी द पार्टनर इन अ फर्म बाय टेकिंग द ऑल एवरीवन कंसेंट्स। ठीक है। और माइनर के पास एक चीज और है। सपोज आज ये माइनर है, आप आज इसकी हम एज लगा लेते हैं 15। आफ्टर 3 years ही बिकम द 18। व्हेन ही बिकम द 18, ही हैव द राइट either to continue with the partner or to be not be with the partner। उसके पास ये राइट है कि वो 18 पे आके चूज करेगा कि या तो वो पार्टनर रहेगा या फिर वो पार्टनर नहीं रहेगा। अब तो वो मेजर हुआ है ना। जब वो माइनर था तो उसके गार्जियन या किसी के साथ भी कंसेंट लेके हमने उसे पार्टनर बना लिया और उसका प्रॉफिट उसको देने लगे। लेकिन जब 18 का हुआ तब वो अपनी चॉइस से आएगा, या तो वो आएगा या फिर नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6 month विंडो होती है। लेट मी चेक, ये एक बार ये चीज़ चेक कर लेते हैं। हाँ, गिव मी अ मिनट। हाँ, विद इन द 6 month। आज ये 18 को हुआ, 18 की होती है, इसके पास 6 महीने का टाइम है। अगर ये 6 महीने तक अपने आप ही अपनी कंसेंट दे देता है, या तो पार्टनर होने की या तो नहीं होने की, तो ठीक है। अदरवाइज आफ्टर द 6 months इफ द नो कंसेंट इज कम, इट डीम्ड एज अ पार्टनर। तो फर्म ये मान के चलेगी कि उसने हमारी पार्टनरशिप एक्सेप्ट करी है। क्लियर? दैट इज विद द माइनर। अब मैं बात कर रहा हूँ आउटगोइंग की, कैसे किसी को निकाल सकते हैं। देखो, रिटायरमेंट और डेथ इज अ ईजी प्रोसेस। रिटायरमेंट का जो भी फर्म में प्रोसेस होगा कि भाई 65 का 60 का जो रिटायर हो जाएगा, और डेथ होगी तो ऑटोमेटिकली वो बाहर निकल गया। एक है नोटिस और कंसेंट, कि सारे पार्टनर्स ने मिलके कंसेंट के साथ एक नोटिस निकाला, और किसी पार्टनर को बाहर कर दिया। दैट इज सिंपली अ नोटिस। ये वाला जो प्रोविजन है नोटिस और कंसेंट के साथ, इट्स नॉट ईजी। court never be support this process, this custom, this tradition, court are not be always in a favor of this। रीजन बीइंग कि अगर हम इतना इजी कर देंगे किसी भी फॉर्म में से पार्टनर को निकालना कि बस नोटिस निकाला, सबने कंसेंट दी और निकाल दिया, तो फिर जितने भी पार्टनरशिप फॉर्म होंगे ना, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो हर फॉर्म में से लोग एक दूसरे को निकालते रहेंगे और लोग वहाँ पे कोई बचेगा नहीं, और इनसाइड पॉलिटिक्स बहुत हो जाएगी। तो इसलिए प्राइमरी कोर्ट आर डील विद दैट कि अगर आपने फॉर्म बनाई है, पार्टनरशिप क्रिएट करी है, तो रिटायरमेंट और डेथ पे ही निकले और किसी वजह से ना निकले। ठीक है।
दैट इज द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग ऑफ पार्टनर. टिल नाउ पार्टनरशिप हैज क्रिएट, नेचर वी ऑलरेडी डन, कॉन्ट्रैक्ट हमने बना लिया, पार्टनर्स आगे, राइट्स एंड ड्यूटीज़ हमने डिसाइड कर ली, थर्ड पार्टी से हम बात करने लगे. ड्यूरिंग द वर्क इनकमिंग भी होती रहती है पार्टनरशिप फॉर्म में, आउटकम भी रहती है, लोग आते भी रहते हैं, लोग जाते भी रहते हैं, फर्म अपने अच्छे से चलेगी. लेकिन फर्म आल्सो कैन बी डिजॉल्व, डिजोल्यूशन भी हो सकता है. सेक्शन 32 till 46 47 आर डील विद द डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म. 2-3 things are available on a happening of certain event by virtue of section 42 or by 43 is court, sorry 44, sorry 44, अरे क्या हो रहा है, कोर्ट की मदद से. हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट तो सिंपल सा है कि भाई देखो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, पार्टनर्स की डेथ होगी, मैक्सिमम पार्टनर की डेथ हो गई है, या फिर वो फिक्स टर्म के लिए थी, फिक्स टाइम पीरियड के लिए थी, टाइम पीरियड खत्म हो गया, या फिर जो एडवेंचर था, जो ऑब्जेक्ट था वो कंप्लीट हो गया कि भाई जिस पर्पस के लिए हमने बनाई थी वो चीज डन होगी, नाउ वी हैव टू बी डिसॉल्व द पार्टनरशिप. या फिर सारे पार्टनर मर गए, ज़्यादातर पार्टनर्स की डेथ होगी, या फिर फर्म ही कर्जे में डूब गई. इन दैट टाइप ऑफ थिंग्स द फर्म हैज़ बीन डिसॉल्व. कोर्ट क्या कहती है कि इनकेपेबिलिटी आ गई, पार्टनर्स आर नॉट केपेबल टू कंटिन्यू हिज बिजनेस, वो कैपेबल ही नहीं रहे, या फिर फ्रस्ट्रेशन हो गया, जो ऑब्जेक्ट था वो इलीगल हो गया. सपोज आप किसी सब्जेक्ट मैटर में डील करते थे, बाद में कोर्ट ने या फिर लॉ ने उसको बैन कर दिया, तो आपका काम ही खत्म हो गया, तो नो ऑब्जेक्ट लेफ्ट विद यू. या फिर ब्रीच कर दी किसी व्यक्ति ने, पार्टनरशिप फर्म ब्रीच कर दी, उसके एग्रीमेंट्स, उसकी टर्म्स, उसकी कंडीशंस ब्रीच होगी, जिसकी वजह से पूरी फर्म ही डिसॉल्व करनी पड़ेगी. या फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, इनकैपेबल लॉस हो गया, पार्टनरशिप अब बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है, नाउ दे आर गोइंग टू क्लोज दैम. या फिर एनी अदर रीज़न, कोई भी एनी जस्टिफिएबल रीज़न है, उनका मन नहीं कर रहा, दे मेक अ सेपरेट, या फिर पार्टनरशिप का डिवीजन हो गया, भाई अब सब लोग अपना सेपरेट बिजनेस करेंगे, दैट थिंग कैन बी अकर. ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 43 एंड 42 एंड 44. एक बीच में 43 और है, बाय नोटिस या फिर बाय विल, कि पार्टनरशिप सही चल रही थी, ऐसा किसी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, पर अब उन्होंने सोचा कि यार अब ना बंद कर देते हैं, नाउ वी आर टायर्ड, अब हमें कंटिन्यू करनी, उन्होंने नोटिस निकाला और मिलके पार्टनरशिप क्लोज कर दी. ये है आपकी डिसॉल्वमेंट. क्लियर? इसमें एक दो चीज ये है कि जब व्हेन द पार्टनरशिप हैज बीन डिसॉल्व, व्हाट अबाउट द डेप्थ विच आर ओ टू हैव टू बी पे बाय द पार्टनरशिप फर्म. अगर उनके ऊपर कोई डेप्थ है, कोई कर्ज है, वो भी तो पे करना है. देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द फर्म टू फुलफिल हिज ऑल लाइबिलिटीज. जो फर्म का जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जितने भी डेप्टर्स हैं, जितने भी क्रेडिटर हैं, जिन्होंने फर्म में पैसा लगाया है, जिनसे हमने पैसे लिए हैं, उन सब की डेप्थ पूरी करी जाएगी. इससे पहले सॉरी, अगर देखो सबसे पहले गवर्नमेंट की डेप्थ पूरी करी जाएगी. अगर कोई गवर्नमेंट की फीस या डेप्थ है तो पहले वो पूरी करेंगे, फिर फर्म की प्राइवेट जो क्रेडिटर से हमने पैसा लिया है वो फुलफिल करेंगे. उसके बाद कुछ सर्टेन अदर लाइबिलिटीज आर अवेलेबल, कोई बिल बकाया है, कोई अलग से कोई मेंटेनेंस का खर्चा बकाया है, कोई रेंट बकाया है, वो सारी चीज़ें हम फुलफिल करेंगे. उसके बाद जो पैसे बचेंगे, इफ़ द सम अमाउंट इज लेफ्ट, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन द पार्टनर्स. ठीक है, तो पहले गवर्नमेंट की सारी डेप्स एंड ड्यूटीज पे करनी, फिर प्राइवेट क्रेडिटर्स की पूरी करनी, फिर अदर कोई अदर लाइबिलिटी बचती है, देन वी हैव टू बी फुलफिल दैट. लास्ट इफ द मनी हैज बीन लेफ्ट, वी दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स. एक बात तो ये है. दूसरी बात, एक चीज़ और समझना, एक होता है सेल ऑफ गुडविल. इफ यू सेल योर पार्टनरशिप, अगर आपने अपनी पार्टनरशिप को सेल आउट कर दिया है, देन इट्स योर ड्यूटी. तो उसमें जो एग्रीमेंट बनेगा ना, तो ये एग्रीमेंट बनेगा, यू ऑल पार्टनर्स कैन नॉट डू द सेम बिजनेस इन दिस पर्टिकुलर टेरिटोरी इन दिस टाइम. जो भी एग्रीमेंट बने कि इतने समय तक आप कोई भी ये बिजनेस जो इस फर्म से रिलेटेड है वो नहीं कर सकते, इफ़ यू सेल द गुडविल. क्योंकि जो बंदा आपसे गुडविल खरीदेगा, गुडविल मतलब आपका नेम ऑफ फर्म, लोगो ऑफ फर्म, ट्रेडमार्क ऑफ फर्म, ये सारी चीज़ आपसे किसी ने सपोज खरीद ली. तो जैसे सपोज करो कोको कोला अगर अपना लोगो बेचती है,
तो जो बंदा खरीदेगा वो सबसे पहले यही कहेगा उसके मालिक से, भाई मैं तो लोगों को खरीद रहा हूँ, ठीक है। अब आज के बाद आप सॉफ्ट ड्रिंक का कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि यू ऑलरेडी आर द मास्टर ऑफ योर बिजनेस। और अगर आप मुझे फर्म बेच के मेरे सामने एक और ऐसी अपनी एक और नई फर्म खोल लेते तो मुझे तो बहुत बड़ा कंपटीशन मिलेगा, मैं तो नया आया हूँ मार्केट में। तो व्हाट द लॉजिक टू बाय योर नेम। मैंने आपका नेम इसलिए खरीदा ताकि आपको सबसे पहले कंपटीशन से हटा दूं, ये ना कि आप ही वो बिजनेस दोबारा से करने लगे और फिर मुझे ही नुकसान पहुंचा रहे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अच्छा बैकअप है, अच्छी नॉलेज है, क्लाइंट्स की लिस्ट है, डाटा है सब चीज का, ठीक है। तो गुडविल जब बेची जाएगी, पार्टनरशिप फर्म अगर बेचा जाएगा, सेल आउट होगा, तो कोई भी पार्टनर्स वो सेम बिजनेस नहीं करेगा, ना ही उस पार्टनरशिप फर्म का नेम यूज करेगा। इन अ केस ऑफ, हाँ बताइए। सर जैसे गुडविल के लिए आप कह रहे हैं, जैसे हम स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं किसी बिजनेस की और फिर हम करते हैं सर बिजनेस उसका भी। नहीं, अगर जैसे सपोज आप खरीदते हैं, अगर आपने किसी का नेम खरीदा, ट्रेडमार्क खरीदा, तो आप उस ट्रेडमार्क के अंदर वो बिजनेस कर सकते हैं जिस ट्रेडमार्क में वो यूज होता था, ठीक है। लेकिन जो बेच रहा है वो नहीं कर सकता अब। जैसे फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं, कहते हैं जैसे आकाश की ले लिए तो आकाश की यहाँ भी उसने फ्रेंचाइजीज चला रहा है, उसकी अपनी एक्सेप्ट भी चल रही है। नहीं, फ्रेंचाइजी लेना एक अलग चीज है। गुडविल नहीं है इसका जो उसके साथ फ्रेंचाइजी में तो आप उसके अंडर वर्क कर रहे हो ना भाई। फ्रेंचाइजी लेना, सपोज मैं, जैसे डोमिनोज है, डोमिनोज अपनी फ्रेंचाइजीज देता है, अलग अलग अपने अपने रेस्टोरेंट खुलवाता है, आप उसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं और डोमिनोज के अंडर वर्क करते हैं। तो उसमें डोमिनोज क्या आप पे लायबिलिटी लगाता है? सबसे पहले तो भैया मेरा नाम यूज़ करेगा, कोई सी और का नाम यूज़ नहीं करेगा, सारे प्रोडक्ट्स में से मुझे शेयर देगा, जो मैंने मीनू बता रखा है वही मीनू रखेगा, वही रेट रखेगा। अगर आप आकाश की फ्रेंचाइजी लेते हैं, आकाश इंस्टीट्यूट की, और कोचिंग खोलते हैं, तो आकाश वाला आपसे शेयर लेगा या फिर रॉयल्टी लेगा? रॉयल्टी अमाउंट लेते हैं ना वो, कि भाई इतना सबमिट कर दे तब फ्रेंचाइजी मिलेगी। सो यू आर वर्क अंडर दैट फर्म। एक तरह से तो ये गुडविल ही है। नहीं नहीं नहीं, ये सेल नहीं है। आप उस जब तक आकाश चाह रहा है तभी तक तो आपको देगा, वो पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ देगा, भैया ये सिलेबस पढ़ाएंगे, ये डेकोरम होगा, टीचर की ये क्वालिटी होगी, इतने एम्प्लॉय होंगे, ये फीस स्ट्रक्चर होगा। आप उसमें अपना क्या कर सकते हो? आप तो उल्टा सिर्फ कमीशन लेते हैं। अगर मैं फ्रेंचाइजीज की बात करूँ, चाहे वो डोमिनोज है चाहे आकाश है, मैं आकाश के नाम से इंस्टीट्यूट खोलूंगा, बच्चे आएंगे पढ़ने, तो मेजर जो फीस होगी वो आकाश पे जाएगी, मैं तो बस बीच का कमीशन ले रहा हूँ, है ना। वो बिल्कुल सेल नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर मार्केट है, वो तो बिजनेस डेवलपमेंट करने का एक प्रोग्राम है। सेल तो ये है कि मैं आज के बाद ये काम करूंगा ही नहीं, कि भाई गुडविल में सेल की जा सकती है फिर। हाँ, सिर्फ गुडविल भी सेल होती है। गुडविल पे तो लोन मिलते हैं, सिर्फ गुडविल पे। गुडविल भी सेल होती है, ट्रेडमार्क भी सेल होता है सिंपली। लेकिन जब आप ये गुडविल, ट्रेडमार्क, लोगो सेल करेंगे तो आप ये प्रॉमिस देंगे कि आप सेम बिजनेस नहीं करेंगे अब। तो ओनली गुडविल हमने ली है तो फिर वो तो फॉर्म की वो कहने से आप तो कर ही नहीं सकते फिर वो business। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई फर्म है और आपने अपनी फर्म का नाम मुझे बेच दिया, आपका लोगो, आपका ट्रेडमार्क, नाउ इट्स टू मी, नाउ यू कैन नॉट डू द सेम बिजनेस विद एनी अदर लोगो। इससे तो उसने अपना बिजनेस ही बेच दिया सर। उसने अपना बिजनेस बेच दिया, वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट। उसने अपना बिजनेस बेच दिया सिंपली, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सेक्शन 55 मैं आपको बताऊं, सेक्शन 55 है और सेक्शन 36 है। ये सिंपली ये बताता है कि आप उसमें अपना गुडविल ही बेच रहे हैं, आप अपना बिजनेस ही बेच रहे हैं, है ना। हम देखो, मैं किसी फर्म का लोगो क्यों खरीदूंगा करोड़ों रुपए में? मैं नया लोगो बना लूंगा, लेकिन मैं वो लोगो इसलिए खरीदता हूँ क्योंकि उस लोगो के साथ लोगों की फीलिंग अटैच है, एक ऑलरेडी मार्केटिंग है, ऑलरेडी एडवर्टाइज है, वो लोग उससे अवेयर हैं। अब मैंने वो लोगो खरीदा और आप सेम टाइप का बिजनेस करने लगे, तो आप तो जल्दी मार्केट कैप्चर कर लेंगे। मैंने बिजनेस ही तो खरीदा है लोगों के तहत, आपका मशीनरी नहीं ली, प्रोडक्ट नहीं लिया, मैंने सिर्फ आपका बिजनेस लिया है। नाउ यू विल नॉट डू दैट टाइप ऑफ बिजनेस अगेन।
ठीक है, चलो क्लियर यहाँ तक सारी चीजें। सेल ऑफ गुडविल बड़े ध्यान से समझ लेना। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इफ यू रिमेंबर सेक्शन 27, हमने अगर आपको याद है तो हमने सेक्शन 27 में पढ़ा था, नो एग्रीमेंट कैन बी मेड विच रेस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम अ लीगल ट्रेड। लीगल ट्रेड करने से अगर कोई आपको एग्रीमेंट रोकता है तो वो वॉइड है। और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग सब क्लॉज F। ठीक है, ये चीज आप एक बार चेक कर लेना। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में है कि वी कैन डू द ट्रेड इफ यू रिमेंबर, राइट टू फ्रीडम में हमने पढ़ा था कि हम कोई भी बिजनेस कहीं भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं सेल ऑफ गुडविल में कि गुडविल बेच दी तो वो वाला बिजनेस नहीं कर सकते, दैट इज कंप्लीटली अलाउ, इट्स अ एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 26 और आर्टिकल 19, इन दोनों का ये एक्सेप्शन है। ठीक है, और आप जब भी कभी सेल ऑफ गुडविल करेंगे यू कैन नॉट बी डू द सेम बिजनेस, वो उस गुडविल का इम्प्लाइड इंग्रेडिएंट है, उस एग्रीमेंट का वो इम्प्लाइड बात है कि आप वो नहीं कर देंगे। इवन टेरिटरी टाइम पे ऐसा हो सकता है कि टेरिटरी डिफाइन होगी, इतने एरिया में मत करना भाई, बाहर कर लेना, ये उसमें आप ऐड करवा सकते हो कि जब आप सेल ऑफ गुडविल बेचने की भाई देख मैं यहाँ नहीं करूँगा, इफ आई एम बिलोंग फ्रॉम हरियाणा माई प्रोडक्ट इज ओनली फेमस इन हरियाणा, तो मैं हरियाणा में नहीं कर रहा, दूसरे स्टेट में कर लूँगा। अगर बायर रेडी है तो उसके लिए आप वो ओके कर सकता है, या फिर आप उससे कह सकते हैं कि भाई 10 साल तक मत कर, 10 साल बाद मैं सारी चीज़ें समझ जाऊँगा, मार्केट कैप्चर कर लूँगा, 10 साल के बाद कर लियो। ठीक है, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी वैलिड इन अ केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल। क्लियर हियर? चल लास्ट वी कम विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, सेक्शन 56 एंड द 57 सिंपली डील विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। वन थिंग इज क्लियर विद दैट कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट that thing is optional, it's okay with that, but if your partnership firm is not registered you cannot take the benefit of partnership act। partnership act का आपको कोई benefit नहीं मिलेगा। not only that you cannot sue, आप किसी पे केस भी नहीं कर सकते by name of firm, फर्म के नाम से इंडिविजुअली कर सकते हैं लेकिन फर्म के नेम से केस नहीं कर सकते, लेकिन बाहर का बंदा आपकी फर्म पे केस जरूर कर सकता है। ठीक है, आप केस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट ऑन द नेम ऑफ फर्म। क्लियर? दैट इज विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। एक चीज़ और थी मुझे जो छोटी सी बतानी है आपको, इसमें मुझे मिल नहीं रही, चलो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, दैट आर इन्फोर्स्ड ऑन द 1932 अक्टूबर 1932। गिव मी अ मिनट, आई जस्ट क्लियर विद दैट थिंग। हाँ, एन एक्ट एंड इन्फोर्स इन 8 अप्रैल 1932 में ये इन्फोर्स हो गया था, एक्सेप्ट द लास्ट चैप्टर रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है सेक्शन 56 चैप्टर 7 फ्रॉम सेक्शन 56 ऑनवर्ड्स, इट आर इन्फोर्स इन द 1933। बाकी सारा पूरा चैप्टर हो गया है आपका 1932 में इन्फोर्स, लेकिन जो लास्ट वाला चैप्टर है इट इन्फोर्स इन 1933। वाई? रीजन बिकॉज इज दैट कि इट्स अबाउट द रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 56 ऑनवर्ड्स इज अबाउट द रजिस्ट्रेशन। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैंने आज एक्ट निकाला और कल से ही सब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। भाई ऑफिस बनाना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे, फॉर्म बनाने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट, क्लर्क की, उसकी टीम की अपॉइंटमेंट। सो द कोर्ट एंड द लॉ लेजिस्लेचर गिव द पीरियड ऑफ 1 ईयर कि 1 साल तक का हम समय देते हैं, सारी स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने यहाँ एक ऑफिस जनरेट कर लें, रजिस्ट्रार अपॉइंट कर दें और प्रोसेस तैयार कर दें कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। आफ्टर दैट थिंग यू ऑल आर द गेट द बेनिफिट ऑफ द चैप्टर 7। इससे पहले जो फर्म चल रही है 1932 और 33 के बीच में जो फर्म है ना, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, वो एक जैसी डील हो रही है। लेकिन जैसे ही 33 आ गया, अक्टूबर 33 के बाद जो रजिस्टर्ड फर्म है उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है और नॉन रजिस्टर्ड फर्म को प्रिविलेजेस नहीं मिलते। क्लियर? दैट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप एक्ट इन द पार्टनरशिप एक्ट।
So you have to be go with the first regarding the definitions and the nature of a partnership act, status and the membership and particular the will of partner. Then we go with the relation of the partner कि partner partner के बीच में क्या relation है और partner और third party के बीच में क्या relation है. थर्ड पार्टी के लिए एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली लाइबल होगी वट एवर द पार्टनर्स डू. फर्म इज आल्सो लाइबल फॉर द एवरी एक्ट ऑफ द पार्टनर्स एंड पार्टनर्स आर कलेक्टिवली लाइबल टू ईच अदर्स. वो all partners are the agent of a firm and the right and duties between the partners are decided by the agreement. Then we go with the incoming and outgoing. Incoming भी हम मेजोरिटी बेस पे हम किसी को भी इनकमिंग करवा लेंगे या फिर माइनर भी सेक्शन 30 के तहत हमारे यहाँ पार्टनर बन सकता है. आउटगोइंग यही है कि या तो रिटायर हो गया या डेथ होगी या फिर हमने नोटिस दे भेज के उसको बाहर निकाल दिया. डिसोल्यूशन सर्टेन इवेंट हैपन हो गया तो आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. डेथ हो गई, आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया, आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, आपकी इंसॉल्वेंसी आ गई तो ठीक है. या फिर कोर्ट कोई ऑर्डर निकाले, कोर्ट ये कहते भाई आप इनकेपेबल हैं, या फिर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है, या फिर वो जो ऑब्जेक्ट था वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो ऑब्जेक्ट फुलफिल ही नहीं हो सकता, वो इलीगल हो चुका है, या फिर आपको बहुत सारे लॉस हो गए या एनी अदर कंडीशंस, एमरजेंसी टाइम है, कुछ भी है, कोर्ट आपको वो डिसॉल्व कर सकती है. इन अ बिटवीन सेक्शन 43 बाय नोटिस बाय विल यू कैन आल्सो बी डिसॉल्व योर फर्म. ठीक है. लास्ट विद द रजिस्ट्रेशन, चैप्टर 7 आर डील विद द रजिस्ट्रेशन. यू हैव टू बी रजिस्टर्ड योर फर्म. इट्स अ ऑप्शनल नॉट कंपल्सरी, बट इफ यू रजिस्टर्ड यू गेट द बेनिफिट, अदरवाइज यू नॉट गेट द बेनिफिट. चलिए, कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब आप एक सारा पूरा बेयर एक्ट रीड करेंगे. फर्स्ट यू रीड द PDF, make the notes and read the complete bear act. ठीक है. Okay then, bye. Okay, thank you, sir. Good night, sir. Good night, ma'am.